Hi, good morning. Myself, Dr. Thakur Arunima Singh, Assistant Professor in JD National B.Ed College. On subject evaluation. Today I will teach you the introduction meaning of evaluation. The concept of evaluation was introduced by B.S. Bloom. In India, NCERT organized seminars on evaluation in Delhi, Mumbai, Hyderabad, and many other places. The concept of evaluation is also applicable to the teaching of English. Evaluation is a gradual and continuous process. It goes beyond measurement. From useful information, including measurement, we make a judgment, that is evaluation. For example, the teacher may evaluate the student Geeta that she is doing well in English because most of the class scored 50 out of 100. Evaluation is a concept that has emerged as a prominent process of assessing, testing, and measuring. Its main objective is qualitative improvement. It is a process of making value judgments over a level of performance or achievement. Making value judgments in evaluation process presupposes the set of objectives. According to J.W. Wrightstone, evaluation is a new technical term introduced to design a more comprehensive concept of measurement. The objectives of teaching English have been discussed in above content. Organizing the learning experiences for behavioral change, there should be objective-based lesson planning. For the measurement of the behavioral change, the following devices are used: observation, interview, questionnaire, checklist, examination. The management of behavioral change device. These are the management of behavioral changes device. So, in last, after the measurement of behavioral change, it should be determined whether the said objectives have been achieved or not. In this way, evaluation is a long, continuous, and qualitative process. Now, the main points of the evaluation are as follows. It was introduced by B.S. Bloom and organized by NCERT in different states of India as discussed in notes. Concept of this evaluation is applicable in English teaching as well as other fields. Using measurement and useful information, we make judgment, which is also known as evaluation. For your better understanding, an example is given in the notes. Evaluation is a prominent process of assessing, testing, and measuring. So, the main objectives are qualitative improvement, valuable judgment, measurement of behavioral change. एक्चुअली इवैल्यूएशन को हम लोग हिंदी में मूल्यांकन बोलते हैं. मूल्यांकन मीन्स मूल्यों का अंकन. जब हम लोग किसी भी चीज़ का अंकन करते हैं तो उसे पॉजिटिव या निगेटिव में अंकन करते हैं, उसके वैल्यू को मेज़र करते हैं. जैसे हम लोग इसको एजुकेशन से जोड़ते हैं, चूँकि हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं तो हर चीज़ को, हर एग्जाम्पल को हम लोग एजुकेशन से ही जोड़ेंगे. तो अगर जब हम लोग एजुकेशन से इसको जोड़ते हैं तो इसको इस ढंग से लिया जा सकता है कि डिग्री तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन केवल डिग्री ले लेने से वो एजुकेशनिस्ट है, शिक्षित है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है. क्योंकि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षित वही है सही मायने में जो अपनी शिक्षा को
जो कि उसने अभी तक लिया है, ग्रहण किया है, उससे उसके व्यवहार में परिमार्जन ना परिलक्षित हो। व्यवहार में परिमार्जन जिस शिक्षा से आए, जिस व्यक्ति में शिक्षा की वजह से उसके व्यवहार में परिमार्जन आए, वही शिक्षित होता है। दैट इज इवैल्यूएशन। यहाँ हमने परिमार्जन शब्द का इस्तेमाल किया। परिमार्जन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? परिवर्तन भी कह सकते थे कि जिस व्यवहार में परिवर्तन आए, लेकिन परिवर्तन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि शिक्षा की वजह से सिर्फ पॉजिटिव परिवर्तन ही आए। इसको आप इस ढंग से समझ सकते हैं कि आज इतनी बुराइयां सोसाइटी में आ गई हैं, उसमें वेल एजुकेटेड स्टूडेंट भी शामिल हैं। तो क्या वो एजुकेशन उनको नहीं मिला, उनको डिग्री नहीं मिला? ऐसा नहीं है, उनको डिग्री मिला, लेकिन उस डिग्री की वजह से उनमें जो व्यवहार परिवर्तन हुआ वो निगेटिविटी लेकर आया। दैट इज बिहेवियरल चेंज। लेकिन हमने यहाँ व्यवहार परिमार्जन का इस्तेमाल शब्द इसलिए किया क्योंकि परिमार्जन हमेशा पॉजिटिविटी लेकर आता है, सकारात्मक रिजल्ट लेकर आता है, और इसका तात्पर्य ये है कि वही व्यक्ति सही मायने में शिक्षित होता है जो शिक्षा ग्रहण करके अपने व्यवहार में परिमार्जन लाता है और वो एक सफल नागरिक बनने की कोशिश करता है। इसीलिए हमने यहाँ पर व्यवहार परिमार्जन शब्द का इस्तेमाल किया। As J.W. Rystone said, evaluation is a new technical term introduced to design a more comprehensive concept of measurement. इनके अनुसार भी इवैल्यूएशन जो है वो एक न्यू टेक्निकल टर्म है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है मेजरमेंट के लिए, सो दैट कि स्टूडेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको इवैल्यूएट किया जा सके कि वो पॉजिटिव आ रहे हैं या नहीं, उनके व्यवहार में जो चेंजेस हो रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं या नहीं। There should be objective-based lesson planning. There are devices for the management of the behavioral change, such as one should be observative. Teacher should interview their student. On the basis of interview, he or she should raise questions. One should create checklist. At last, teacher should examine the students by taking their exam. As you can see, evaluation is a long, continuous and qualitative process. तो इसको हम इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि शुरू में हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक टीचर अपने स्टूडेंट को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन अवलोकन करता है, उसके हाव भाव, बात विचार, एटीट्यूड, पढ़ने का तरीका, होमवर्क, सब हर एक चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, अवलोकन करता है। सेकेंड वन, टीचर शुड इंटरव्यू देयर स्टूडेंट्स। टीचर इंटरव्यू एक दो तरफा पक्ष है जिसमें एक तरफ स्टूडेंट होता है, दूसरी तरफ टीचर होता है, और टीचर अपने स्टूडेंट से इंटरव्यू लेने के दौरान कई तरह की बातों को उससे पूछता है, जानने की कोशिश करता है, सो दैट कि उसके अंतर्मन में क्या द्वंद्व चल रहा है जिससे उसके व्यवहार उसके व्यवहार को क्या कहेंगे, परिवार को प्रभावित कर रहा है, उस पॉइंट्स को वो जानने की कोशिश करता है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, टीचर कुछ क्वेश्चन रेज करता है सो दैट कि स्टूडेंट उस क्वेश्चन के आधार पे अपने आप को प्रेजेंट कर सके। उस क्वेश्चनायर के बेसिस पे टीचर स्टूडेंट की मनोदशा को जानने की, समझने की कोशिश करता है, सो दैट कि वो स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए, उसके बिहेवियरल चेंज के लिए
व्यवहार परिमार्जन के लिए एक चेकलिस्ट बना सके। एट लास्ट टीचर शुड एग्जामिन द स्टूडेंट्स बाय टेकिंग देयर एग्जाम। और इस प्रकार से एक टीचर ओरल और रिटन एग्जामिनेशन लेने के बाद उस स्टूडेंट को जज करता है, उसकी मनोदशा को समझता है, मूल्यांकन करता है और इस प्रकार से उसके व्यवहार में परिमार्जन लाने की कोशिश करता है। दैट इज इवैल्यूएशन। सो इस तरह से अभी तक आप लोगों ने समझा कि इवैल्यूएशन इज अ लॉन्ग कंटिन्यूअस एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस। इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है जो कंटिन्यूअस चलती है, लगातार चलती है और एक गुणात्मक प्रक्रिया भी है।